यस अपने विषय में बताइए। सर, मेरा नाम सनी कुमार पटेल होगा। मैं मेरे पिताजी का नाम श्री गौरी शंकर सिंह। मैंने अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीएससी एग्रीकल्चर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 2014 से 2018 बैच में पास किया। उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा जुबिलेंट लाइफ साइंसेज लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में मेरा जॉब हुआ। और उसमें मैंने एज अ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के तौर पे वहाँ पे 1 साल काम किया। और उसके बाद मेरा जो पोस्टिंग डेजिग्नेशन था वहाँ पे एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पे था, एनिमल न्यूट्रिशन के अंतर्गत, और बेस्ड ऑन पोल्ट्री एंड फिशरीज। मेनली इट वाज पोल्ट्री सर। और उसके बाद 2020 से मैंने आत्मा रोहतास ज्वाइन किया, और एज ए असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर अभी मैं आत्मा रोहतास के अंतर्गत काम कर रहा हूँ सर। आपने जो पहला बताया किस पद पे थे, आप क्या कार्य कर रहे थे, फर्स्ट जो आपका वर्क प्रोफाइल था? सर, it was a corporate sector, and my job profile was in based on animal nutrition, and designation was management trainee, sir. वेरी गुड। It was a एनिमल training period there. ठीक ठीक, एनिमल न्यूट्रिशन में आपको क्या लगता था, कौन सा हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट को यूज करते थे? यस सर, यस सर। सर, एनिमल न्यूट्रिशन जो हम लोग का बेसिक डिपार्टमेंट पोल्ट्री और फिशरी से था सर। तो हम्म। उसमें जितना भी जो फीड तैयार किया जाता सर, मेनली सर पोल्ट्री हम्म। एंड फिशरी से रिगार्डिंग, और मेनली इट वाज पोल्ट्री बेस्ड। तो आई लर्न देयर दैट द मेजर फीड प्रोड्यूस्ड वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हॉर्टिकल्चरल वेस्टेज, or not much scale, but to small extent it was utilized there for feed manufacturing as well, sir. And there we get an opportunity to visit large farmers in near about Haryana and all, and there we saw feed mills which were utilizing those horticultural products, because as we clearly know, sir, horticultural products in vegetables and fruits, they contain micronutrients and minerals and vitamins as well. So calcium, हम्म। and which is very important for poultry feed, was obtained by different sources and products of wastage as well, sir. And What's we know what's that your agriculture. opinion? Okay, okay. What's your opinion about the future of poultry and fishing in Bihar? Yes, sir. Sir, in Bihar, it has already gained pace, sir, because at currently we are taking this a picture of Rohtas itself, sir, and up to larger scale, fisheries has already gained pace. It need proper channelization of marketing and proper providence of guidance, and with proper material of fingerling, because almost every every places are filled with ponds, but proper management is required there for their actual growth and development, sir. And What's what's and what's the present development? What's the level of yes sir, development now Bihar has required in the field of poultry and fishing? yes sir, yes, sir. Sir, And in the any field some of poultry, any some special projects of the government of Bihar regarding these two? yes sir. Sir, first of all, I would like to mention the important aspect of poultry, sir. We are doing well, and we are doing well in meat sector in poultry, but layering sector is still we are very back along, sir, in layer production of poultry, especially. So we We need to are focus we there. are This we are in a commanding position in poultry right now. in meat production basically, in But egg layer farm. but in sense of production of egg, we are not in top Yes, sir. 10. Why? Yes, sir. मुर्गी Sir, उतने sir, तो अंडा that कहाँ was the जाता है? Yes, yes, sir. That was the point I was because layer farming itself is a very costly input, sir. To हाँ। establish that the layer farming farm, sir, it is a very cost built input. So most of the and our farmers in Bihar, especially and especially, sir, they are small and marginal. So they don't mm, वो अपने आप को सर उतना इनपुट लगा करके वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज द रीजन वी आर lacking. And from the government side, we need that boost in layer farming to accelerate the rate of egg production in poultry, sir. And in fishing, we are already
doing well, sir. We need What's the just a position? proper. What's the position we are having in fisheries? Uh, Sorry, sir, I'm not able to recall it right now, the exact position which we are Exact having. position, at least you say top 5, top 10, top 20. What's the rank? Uh, Sir, in fisheries production, if I had to guess, sir, it will be around 8 to 9th position, sir. Ninth. I'm not sure about it, sir. I Yes, am also not sure, but must have a yes, look on that. Okay. sure, sir. अच्छा. इंडोजीनस क्या होता है? व्हाट इज इंडोजीनस? Endogenous simply means which are indigenously produced, sir. So व्हाट? having the having indigenous means having indigenous origin, sir, or that product which has been produced through a local or that particular specific area from within, sir. व्हाट इज टेट्राजोलियम टेस्ट? Tetrazolium test is used mainly for the seed viability test, sir. आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? Sir, I had done my BSc Agriculture देखिए, जब from Banaras हिंदी Hindu हिंदी University. जब हिंदी में पूछे और हिंदी अगर आता है Sorry, तो sir. आपको हिंदी में ही Yes, बोलना है, yes, sir. ठीक है? कारण कि जी आप सर, इंग्लिश जी में सर, बोल रहे जी हैं, इंग्लिश में सामने वाला बात कर रहा है, लेकिन बाद में अगर बीच में जी हिंदी जी जी बोलता है तो आपको बिहार में काम करना है, आप बोलिएगा, ठीक है? कंटिन्यू जी नहीं. सर, जी सर, इसीलिए मैं बार मैंने जी चेंज किया सर, अपनी लैंग्वेज. प्राइमिंग क्या होता है? जी. So priming is a technique of removing some parts. Priming is a कंट्रोल process. कंट्रोल कंट्रोल इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन. कंट्रोल इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन इज टर्म्ड एज प्राइमिंग. ठीक है? Control inhibition. ठीक Yes, है, sir. एकदम सटीक बोलना है, लिमिटेड Yes, बोलना yes, है. बहुत अच्छा बोलते हैं, मेरे तरफ से yes. बहुत बढ़िया है, आपको बहुत बढ़िया बोलते हैं. वेरी गुड कंट्रोल. बहुत अच्छा बोलने का शैली है, शानदार. पूछिए अब आप. Thank मेरा प्रश्न है आपसे, बिहार में जो कृषि रोड मैप जो चल रहा है, ठीक है, 2008 8 से लेके 2023 तक हमारा ऑलमोस्ट, उसके बाद हमारा फोर्थ चल रहा है. तो जो समाप्त हो चुका है Yes, 2008 से लेके 2023 तक के, जो कृषि रोड मैप की उपलब्धियां, ठीक है, कि देश में किन किन, ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के प्रोडक्शन में भारत अग्रणी बना, ठीक है, अग्रणी है नहीं, अग्रणी बना, आप बता सकते हैं? sir. Yes, sir. I would like to uh, I would like to try a bit, sir, because exactly um, I'm not sure about the actual data, sir, but I would like to continue uh, on the question which you asked, sir. देखिए, Sir, क्वेश्चन का जवाब दो दीजिए. हजार. एक मिनट, क्वेश्चन का जवाब दीजिए. आई लाइक टू, ये सब नहीं बोलना है, ठीक है, टाइम नहीं खाना है. जी ओके, सर, जी डायरेक्ट सर, जी सर, यस या नो, जी या सर, सर आई एम ट्राइंग सर, बट आई एम नॉट श्योर, बट आई एम ट्राइंग, ऐसे करके बोल सकते हो. ठीक है, सेंटेंस को छोटा जी रखने. सर, जी सर. चलिए बताइए. Sir, from 2008 to 2023, Krishi Roadmap has played a very important and crucial role in the development of overall agriculture, and along with horticulture, it has mainly focused on different aspects of fruits and vegetable farming. And as per I am able to recall, sir, in fruits and vegetables, it has gained uh, achievements over production of some specified and special products like uh, in specified area of like with the help of GI tags देखिए of देखिए, like घुमाइए mushroom. मत, घुमाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है, ये आप उसको घुमा रहे हैं, Yes, sir. कोई फायदा नहीं होगा. उससे अच्छा है कि सर इसकी, Yes, sir. ठीक है. तो Yes, एक sir. बार आपको बता दे रहे हैं, लीची, ठीक है, लगभग लीची 3,08,064 मेट्रिक टन का उत्पादन करके बिहार प्रथम स्थान पे रहा. उसके बाद मखाना रहा, ठीक है, 23,500 मेट्रिक टन का उत्पादन किया मखाना का, तब प्रथम बना. फिर मशरूम 28,000 मेट्रिक टन, ठीक है. फिर भिंडी 7,94,104 मेट्रिक टन का उत्पादन करके बिहार भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है.
और उसके बाद फिर कद्दू 6,55,507 मेट्रिक टन। तो लीची, मखाना, मशरूम, भिंडी और कद्दू, याद कर लीजिए कृषि रोड मैप की उपलब्धियां हैं 2008 से लेकर 2023 तक। ठीक है, Yes, sir. ओके, बस Yes, sir. खत्म, Sir, I फिनिश। would like to say one thing. Yes, yes. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी जो ये सीजन चल रहा है रबी सीजन है, ठीक है, या हम बोल तो क्रॉप के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए भी विंटर सीजन चल रहा है हमारा। तो बिहार में, मेनली बिहार को ध्यान में रखते हुए, आप ये बताइए कि वर्तमान में प्रोडक्शन तो बहुत काफी बड़े पैमाने पे हो रहा है, पिक सीजन है, ठीक है, मार्केट में आप देख रहे हो कि क्या स्थिति है। तो अभी किसानों को क्या समस्याएं आ रही हैं ये बताना है, उनकी प्रमुख समस्याएं बतानी है। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट बताओ कि क्या किसानों को अभी कौन सी समस्याएं आ रही है, वो किसानों के लिए चैलेंज भी है। Sir, there are different challenges which our farmers exactly facing. First one is, sir, storage facilities problems, sir. Lack of storage facilities problems, due to which they are not able to get appropriate pricing of their markets. And secondly, I would like to notice, sir, due to change in the climate and temperature and rainfall फिर conditions, अभी अभी uh, क्लाइमेट क्या चेंज हो गया, ये 15-20 दिन, एक महीना, क्या क्लाइमेट चेंज हो गया, ऐसा क्या आ गया कि क्लाइमेट चेंज हो गया उससे किसानों को उनका फसल बर्बाद हो गया। फसल तो बम्पर हो रहा है, yes, sir, no, yes, sir, yes, sir. It फसल was तो। overall, sir, पहले से, तो sorry. फिर किसानों को Yes, मेन sir. मेन समस्याएं क्या आ रही है, क्या किसानों को मेन समस्याएं क्या है। Sir, the first was, like I said, storage. Second is marketing problem. Until right now, we had no any proper structure of marketing, sir. But fortunately, we had Bihar government has established marketing directorate of marketing ये department बताइए, recently, sir. आप मार्केटिंग से क्या समझते हैं, प्रॉपर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या होता है, बताइए, तो थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। Sir, marketing infrastructure means proper buying and selling places for the farmers where they can actually है reach तो out and है तो have a common. है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केटिंग का लोकल मार्केट। Sir, they, yes, sir, yes, sir. Yes, sir. They are there. They are, sir, but they are not लॉजिकल able to fetch. लॉजिकल आंसर दीजिए, लॉजिकल। Sir, but they are मार्केटिंग not able to मार्केटिंग है। cross their area, sir. Yes, sir. They are not able to cross their local area, sir, and that is hindering them to get their get good prices for their मतलब crops and ओवरऑल produces, निष्कर्ष sir. यही निकला ना कि वर्तमान में जो किसानों की जो मेन समस्याएं, खास करके जो सब्जी उत्पादक जो किसान हैं उनकी समस्याएं हैं, उनको उनके उत्पाद का प्राइस नहीं मिल पा रहा है, लॉस में चले जाते हैं इस पीक सीजन में, Yes, sir. है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because of overproduction. वो या तो खेत में ही फसल को छोड़ दे रहे हैं, या काट को मतलब अपने मवेशी को खिला दे Yes, रहे हैं, ठीक है, रेट नहीं मिल पा रहा है, लॉस में चले जाते हैं। yes, sir. Yes. इसके लिए आप हमें कम से कम दो उपाय सुझाइए, किसानों को बताना है आपको एज अ ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जब आपकी तैनाती होती है तो जो सब्जी उत्पादक जो किसान हैं उनको इस सीजन में, जो ये सीजन में उनको नुकसान होता है, भारी नुकसान होता है, उसके लिए दो आपको उनको एक सजेशन देना है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वैलिड रीजन वाला देना है उनको कि कैसे वो इस चीज को कर सकते हैं। Yes, sir. Sir, as a block horticulture officer, I would first of all connect with farmer and give them a basic opinion of first that uh, study about market demand and then supply, and to regulate the timing of their sowing and harvesting according to the market demand and pricing. That will help them to uh, slightly change in early or late sowing or harvesting. Slight changes there in the pattern and time will help them to get good prices and fetch good marketing value of their produce. And secondly, sir, I would like to unite the group of farmers and to uh, communicate with them for long, to reach out of their local areas in other markets where they can get the good pricing for their produce as well. And thirdly, sir, I would like to give my opinion based on protected cultivation for them, ओके, which चलिए। will help them तो to cope. इतना देखिए, इतना आंसर नहीं बनाना है आपको, बहुत सिंपल बोलना है। अच्छा, ये बताइए आप कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, कौन कौन मेथड से अप्लाई करते हैं, उसके मेथड्स बताइए। Sir, method exactly,
अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। अच्छा, जो हार्मोन्स जो टर्म है, ठीक है, जो वर्ड है, इसको सबसे पहले किसने यूज किया था फर्स्ट? सर फर्स्ट इट वाज यूज्ड फॉर ऑक्सीन सर, एंड किसने यूज किया था? that, uh, Whom? yes sir, that I'm not able to recall sir right now. First it was discovered in auxin firstly sir. Can you classify the horticulture plant on the basis of habits and physiological character? Based on habits and physiological characters, sir. Based on habits, all fruits or all sir, horticulture. हेलो। हाँ, यस यस। हेलो। चल, एक आवाज आ रही है? हाँ सर। अच्छा, ये जब कोकोनट के प्लांटिंग के लिए हम लोग जाते हैं तो कौन कौन से पॉइंट को हम लोग कंसीडर करते हैं कोकोनट के प्लांटिंग में? सर कोकोनट के प्लांटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है सर सैपलिंग, उसका जो सीड है सर। उसके बाद जो उसका पिट हम लोग जो तैयार करते हैं कोकोनट प्लांटिंग के लिए, और कोकोनट के पिट में हम लोग प्रॉपर जो कंपोस्ट मटेरियल और तैयार करने के लिए जानते हैं, जिससे कि उसका सीडलिंग जब हम लोग डालें उसमें तो खराब नहीं हो। और अभी मैं यही रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। प्रॉपर ठीक है विनीत सीड जी। होना चाहिए उसका बनाना सीडलिंग का का। बनाना के प्लांटेशन के बाद उसका आफ्टर केयर बताइए। सॉरी सर। बनाना का आफ्टर केयर बताइए अब क्या होगा? सर आफ्टर केयर बनाना का मोस्ट इम्पोर्टेंट इज इट्स स्टोरेज, आफ्टर केयर, गुड आफ्टर, स्टोरेज टेम्परेचर। जब उसका हार्वेस्टिंग होता है तो उसका आफ्टर केयर नहीं होता। आफ्टर केयर मतलब जो प्लांटेशन हो जाएगा ना, तब उसका आफ्टर केयर करना होता है, वो आपको बताना है। ओके सर। मतलब एसटी से भी कम इसका रिजल्ट आया है। बताइए। ठीक। सर आफ्टर केयर प्लांटिंग के बाद हमारा हम लोग बनाना में मेनली प्रोटेक्शन के तौर पे जो उसमें लग सकता है सर, जो डिजीज हो सकता है, जैसे पनामा विल्ट हो गया इस और जो भी हो गया, तो उनसे बचाव के लिए हम लोग सर एग्जैक्टली मैं अभी रिकॉल तो नहीं कर पा रहा हूँ सर, बट ओके ओके, चलिए। अच्छा, ये आत्मा क्या है? आत्मा agriculture technology, as it the name stands, agriculture technology management agency sir. It is basically a body which transmits the technology transmission from top level to bottom level. Top level exists from district level to bottom to the farmers level, with the help of block technical manager and assistant technical manager at panchayat level sir. And ओके। its main objective is इसके 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 आप हमें एक्टिविटी बताइए। that the major activities of Atma includes farmers and scientists interaction, Kisan Gostis, training programs, visit programs of district level, out of district, and to the state level as well. And Gosti Ayojans, Kisan Melas in Rabi and Kharif fasals, Kharif time period before them to aware the farmers as well. And Kisan Chopals, Kisan Patsala Karkram, and training for the ATM and BTM and the other staffs which are posted ओके, there as well, ये sir. मतलब किसान चौपाल These के are the बारे basic किसान programs. चौपाल के बारे में बताइए। सर किसान चौपाल बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सर हमारे बिहार सरकार का, जिसके माध्यम से रबी और खरीफ फसलों का आयोजन होने से पहले पहले किसानों के बीच हम पंचायत और पूरे पंचायत और गांव स्तर पे एक गोष्ठी के माध्यम एक चौपाल का आयोजन, मतलब कि सामूहिक बैठक का आयोजन किसानों के साथ आयोजन किया जाता है, जिसमें कि प्रखंड स्तर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल से और साइंटिस्ट को भी इनवाइट करके उनको महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं किसान भाइयों और बंधुओं को। किस चीज की हमारे जानकारी? उस संबंधित किन किन चीजों की जानकारी संबंध दी सम, जाती है किसानों को? सर संबंधित
संबंधित मौसम और उसके उसके उपरांत लगाए जाने वाली फसलों के आधार का मौसम, और उसमें तरह तरह की जानकारियां जो कि जैसे बीज का उपचार कैसे करते हैं, सॉइल टेस्ट का, मृदा मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोगिता और उसका लाभकारी जो भी हमारी बेनिफिट्स हो सकते हैं उसको लेकर के, और जैसे डिफरेंट जो हमारे क्रॉप्स है उसको लेकर के हम लोग क्या सावधानियां बरत सकते हैं और कैसे उनमें हम लोग बेहतर उनको लगा करके अच्छा ये अपना। अच्छा ये बताओ आप कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसमें कितने पैरामीटर होते हैं? सर सॉइल हेल्थ कार्ड इट कंटेन्स 12 पैरामीटर्स सर। ओके, अच्छा सॉइल हेल्थ कार्ड में कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन को उसमें ये रखा जाता है? सॉइल कार्ड के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है? यस सर। The main information which are provided in soil health cards are regarding nutrient availability of micro and macronutrients, major micro and mm, mm, major nutrients and micronutrients, which are 9 in number, and then rest of them are pH, EC, and organic carbon content. ओके, सॉइल हेल्थ कार्ड कभी देखें आप? Yes sir, yes sir. ओके, तो उस सॉइल हेल्थ कार्ड में उसमें क्या क्या जैसे किसी का अगर सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है तो कभी उसमें देखें क्या लिखा होता है उनके उनके जो इसके बारे में, उनके लैंड के हेल्थ के बारे में हाँ सर। देखे हैं? Yes sir, yes sir. Yes, sir. We ourselves has distributed soil health card to farmers, sir, ओके, of their soil tests. तो ये बताइए एज ए एक्सटेंशन वर्कर आपका क्या रोल होता है? एक्सटेंशन वर्कर का क्या रोल है बताइए? Sir, as the name itself itself explain it, that extension we stretches the different programs and different schemes which are laid out by the government. We stretch that programs and layout schemes from top level to the very bottom level to the farmers. That is the main function of आपने what we ये do as extension जो workers. आपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में पढ़ा होगा उसमें क्या है? एक्सटेंशन वर्कर का रोल क्या होता है कि इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे रिसर्च होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से जो Yes, sir. टेक्नोलॉजी आता है उसको हमें किसानों तक पहुंचाना होता है, ये रोल है ना आपका? Yes, sir. गवर्नमेंट Yes, जो sir. गवर्नमेंट का Yes, sir. Yes, sir. That the same प्राइमरी आपका I क्या was है वो telling, है, sir. ओके। अच्छा अब ये बताओ, भारत सरकार की 5 हॉर्टिकल्चर की योजनाएं और बिहार सरकार की 5 हॉर्टिकल्चर की योजनाओं का नाम बताइए। और वो नाम वो अगर वो आप बता रहे हैं तो उसमें आपको जो हायर प्रायोरिटी से लेकर लोअर प्रायोरिटी का बताना है, ठीक है, अरेंजमेंट में। Sorry, sir. Sir, सेंट्रल sorry, sir. गवर्नमेंट Was due to connection problems, sir. Sorry, sir. I would जो like to. सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो योजनाएं हैं प्रायोरिटी के आधार पर, ठीक है, हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी के हायरकी में आपको बताना है, और उसी प्रकार राज्य सरकार की भी योजनाएं 5 योजनाएं बताइए। Yes, sir. सर हमारे बिहार सरकार की जो मुख्य योजनाओं में अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी बेस सबसे इम्पोर्टेंट हमारी बिहार सरकार की जो योजना है सर, उसमें सिंचाई के आधारित है सर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है और बिहार सरकार भी उसको सपोर्ट कर रहा है PMKSY योजना के अंतर्गत। और दूसरी हमारे जो बिहार सरकार का भी जो महत्वाकांक्षी योजना है सर, वो बागवानी मिशन अंतर्गत है, जिसमें कि केला का, लीची का और अन्य फसलों अन्य जो हमारे बागवानी फसल हैं उनको महत्वाकांक्षाएं देते हुए उनका बढ़ावा विस्तार करने के सिर्फ लिए नाम उनके बताना है, ऊपर योजना। सिर्फ आप उसको उसका जो नेम है ना वो मेंशन करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ये 5 स्कीम है, ठीक है, ये राज्य सरकार की 5 स्कीम है, ठीक है। राज्य सरकार की सबसे हाई प्रायोरिटी की स्कीम कौन सी है बताइए हॉर्टिकल्चर की? सर हाई प्रायोरिटी स्कीम्स में हमारी मशरूम योजना आ जाएगी सर, हट और ये किट वितरण योजना। और दूसरी हमारी है सर बागवानी जैविक मिशन कॉरिडोर है अंतर्गत हमारा, हमारी जैविक योजना है। बिहार सरकार की जो जैविक कॉरिडोर योजना है वो मशरूम वाला से ज्यादा हायर प्रायोरिटी है। यस सर, यस सर, यस सर। जैविक कॉरिडोर योजना जो 13 जिलों में चलाया जा रहा है सर, 10 जिलों में है सर, नॉर्थ ईस्टर्न जिला में।
ठीक है, Yes. चलिए आप जा सकते हैं। Thank you, sir. बहुत अच्छी स्थिति में है सन्नी जी, आप अच्छा बोलते हैं, इतना नहीं कि बोला जाएगा वहां पे। आपका अच्छा कमांडिंग पोजीशन में है। समझ गए? Sir,